Good morning, students. Welcome back to the online sessions of Science Class 10. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I request you don't go outside your homes. Also, avoid to go into the crowded places. And if it should be necessary, you have to go outside your homes. Use face masks, take sanitizers with you. Always be wash your hand at a specific time of interval up to 20 seconds. So stay home and stay safe. Students, let me start to discussing our topic. That is, we are already discussing about the topic of electricity, in which the previous three parts we are discussing about the different type of concept which is related to the electricity. Today we are discussing about the new topics, that is about the heating effect of electric current as well as electric power, explanation of practical unit of electric energy, electric current, and the electroplating. These are the topics that we are discussing on our today's session. So, first we are discussing about the heating effect of electric current. What do you mean by the heating effect of electric current? Also, this type of question are already asked. Explain electrical energy and derive its formula. Or also you can ask the questions like explain the Joule's law. ऐसा questions आ सकते हैं कि याद ऐसा question पूछा हो कि explain the electrical energy and derive its formula. Or also it can be asked what explain about the derive the Joule's law. These are the questions maybe heating effect. So in our daily life, generally we have to be feel or observe that when we continuously run a specific resistance through the electric current, after some time when we touch that kind of the resistance, it feel like a heat. Okay, जैसे आपके घर के अंदर कुछ बल्ब होते हैं, बल्ब को अगर कंटिन्यूअसली 2 या 3 घंटे या कुछ देर चालू रखते हैं और उसको टच करते हैं तो उसका आउटर सरफेस हमें हीट फील करता है, दैट शुड बी लाइक अ हॉट. क्यों ऐसा होता है? व्हाई दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेशन. तो वो कॉन्सेप्ट के लिए कि सपोज द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोइंग थ्रू द सम रेजिस्टर्स, जिसको आर कहेंगे, कि सपोज द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू द सम रेजिस्टर्स आर. So to allow this current into this continuously, we have to be provide a specific battery which can provide the continuously electric charge. तो अगर किसी भी एक रेजिस्टर्स को अगर हमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना है तो मुझे उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. तो सपोज द इलेक्ट्रिक करंट दैट कैन बी फ्लो थ्रू द रेजिस्टर्स एंड टू अलाउ दिस करंट टू बी फ्लो कंटिन्यूअसली द बैटरी, so due to the provided energy and the formations of every electric charge. Okay, so battery which having the chemical charge which can be converted in the form of electric charge, and through that continuous electric charge the electric current that can be flow through the continuous filament of resistors. So we have that the work which required for the keep the change q means what? That is called as electric charge. So it means the work which required to change the q of motion by the battery of voltage V. So we say that W is equal to VQ. Generally we see that W is equal to VQ, right? So the work having to be formation of the change in the motion of electric charge into the specific voltage V. So that is called work done. Work will be equal to V into Q. But from the definition of electric current, हमारे पास electric current का एक definition था. Electric current के definition के हिसाब से क्या था? I is equal to Q upon T. The amount of electric charge that passes in a specific time of interval that is generated by the electric current. So I is equal to क्या था? Q upon T. So instead of using that value, Q is equal to आप क्या लिख सकते हो? I into T. Okay? पर making the multiplication Q की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? IT. तो W is equal to VQ. V की जगह पे आपको क्या Q की जगह पे आपको क्या लिखना होगा? IT लिखना होगा. So work is equal to VIT, right? Work equal to क्या हो गया आपके पास? VIT हो गया. Work that having specific formation of VIT. But Ohm's law में हमने पढ़ा था कि Ohm's law V is equal to आपने क्या पढ़ा है? IR. In the Ohm's law हमारे पास फॉर्मूला था V is equal to what? IR. So V is equal to IR, which W is equal to VIT. उसमें V की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? IR लिखना पड़ेगा. So W is equal to IR into IT. So W is equal to I into I क्या हो जाएगा? I square हो जाएगा. I square R into T. से हो गया specific work. W equal to what? I square RT. So this current that flowing through a specific resistors R
is what, that is a part of the, is T is a state formation of I। तो एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर से जो रेजिस्टर्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको आप क्या कहते हैं, I कहते हैं। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ W। वर्क इट मींस व्हाट, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है बैटरी के अंदर से, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंज्यूम कर रहा है, उसकी वजह से स्पेसिफिक वर्क हो रहा है। तो वर्क इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ कंज्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम हो रहा है तो किसमें कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं H इक्वल टू I²RT। H इज व्हाट, I²RT। हीट, H को क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। सो ये जो इक्वेशन है H इक्वल टू I²RT, इसको आप जूल्स लॉ भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज अ जूल्स लॉ। तो किसी भी रेजिस्टर्स को अगर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट अगर आप फ्लो करते हैं तो उसके वजह से जो जनरेटेड होता है हीट, वो जूल्स लॉ के हिसाब से H इक्वल टू क्या होता है, I²RT। सो दैट इज कॉल्ड एज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जूल्स लॉ। उसी में कौन टॉपिक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। ये जो है वो जूल्स लॉ है, इसको आप क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ जूल्स लॉ। आपको याद ना हो तो आप लिख सकते हैं जूल्स लॉ का, ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मेशन H इक्वल टू I²RT, दैट इज कंसीडर्ड एज अ जूल्स लॉ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कशन करना है वो है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर, देखिए इलेक्ट्रिक पावर जो है ऐसे वर्ड से हम डिनोटेड है, जैसे हम व्हीकल्स का स्पीड क्या है, कितने सीसी की है, कितने बीएचपी की है, दैट इज अ पावर। हॉर्स पावर, ऐसे अलग-अलग मेगावाट, किलोवाट पावर, ऐसे अलग-अलग तरीके के किलोवाट आवर, मेगावाट फॉर्मेशंस में उसको कंसीडर किया जाता है। वॉट में ज्यादातर पावर को वॉट में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पावर। So electric power, it means what, the rate of electric energy। okay, electric power का मतलब क्या होता है कि rate of electric energy, इलेक्ट्रिक एनर्जी का रेट जो होता है स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर, उसको आप इलेक्ट्रिक पावर कहते हो। सो इलेक्ट्रिक पावर इट मींस द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। दिस मींस कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट कंज्यूम्स इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल t is defined as a electric power। So electric power is equal to electric energy consumed upon time, कि कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी उसने कंज्यूम किया है उसको डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक पावर P मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक पावर P को आप कैपिटल P से डिनोटेट करते हैं। पावर जो होता है इलेक्ट्रिक पावर जो होता है उसको हम कैपिटल P से डिनोटेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर दैट इज कॉल्ड P। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। तो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुआ है उसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम दैट इज कॉल्ड वर्क अपॉन टाइम t। क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। बट W इक्वल टू क्या आपके पास फार्मूला में I²RT है, तब P की जगह जो W है उसकी जगह पे आपको लिखना होगा I²RT अपॉन t। क्या लिखना पड़ेगा, I²RT अपॉन t। तो ये जो t और t है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, P की वैल्यू मिलेगी I²R। P का वैल्यू क्या मिलेगा, I²R। बट हमारे पास एक फार्मूला है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी हैव R इज इक्वल टू क्या हमारे पास है, V अपॉन I। R की वैल्यू हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हमारे पास है V अपॉन I। सो P इज इक्वल टू I² एज इट इज इनटू R की जगह पे आपको लिखना है V अपॉन I। R की जगह पे क्या लिखना है आपको, V अपॉन I। R इज इक्वल टू क्या है, V अपॉन I, तो P इज इक्वल टू I² इनटू V अपॉन I हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होगा, P इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, VI मिलेगा। P इज इक्वल टू क्या मिलेगा, VI मिलेगा। बट I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। बट I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो यहाँ पे I की जगह पे V अपॉन R लिखोगे तो V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। P की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट्स क्या हो सकता है, वो मेजर किया था वॉट में या तो जूल पर सेकंड के हिसाब से आप उसको मेजर कर सकते हैं। दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी।
हम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक पावर का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, W इज इक्वल टू P इंटू टी। इलेक्ट्रिक पावर का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू P इंटू, इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन है वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू स्पेसिफिक टाइम। सो यहाँ पे पावर जो वर्क होता है, वर्क को आप किसमें मेजर करते हो, जूल में मेजर करते हो। तो 1 जूल इज इक्वल टू पावर को वॉट में मेजर करते हो, टाइम को किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, पावर को ऐसा आप लिख सकते हैं। सो अभी हमें इसको कन्वर्ट करने से वॉट सेकंड का जो फॉर्मेशन होता है, वॉट सेकंड्स का फॉर्मेशन, इसमें अगर मुझे दिया हो, जनरली हम जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारे डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन में यूज करते हैं उसको 1 किलोवाट आवर कहा जाता है। 1 किलोवाट आवर, 1 kWh, 1 किलोवाट आवर कहा जाता है, जो डेली लाइफ के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिंपल फॉर्म में कंसीडर करते हैं। सो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो किलोवाट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉट में, और आवर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो वॉट इनटू सेकंड यानी जूल का फॉर्मेशन होता है। सो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वॉट, क्या हो जाएगा 1000 वॉट इनटू 3600 सेकंड। तो 36 के पीछे 5 जीरो आपको लिखने होंगे, 1 2 3 4 5 जूल। ठीक है, क्या हो गया 36 के पीछे 1 2 3 4 5 जूल। तो इसको सिंपल फॉर्मेशन में अगर आपको लिखना है सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻⁶ जूल, ऐसे आप उसको लिख सकते हो। तो प्रैक्टिकली फॉर्म्स के हिसाब से अगर हमें लिखना है तो जो पावर होता है, पावर को डिनोटेट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻⁶ जूल। ये जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मेशन होता है। इस हिसाब से इलेक्ट्रिक पावर को डेली लाइफ के अंदर जो है कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज अबाउट इनटू अ किलोवाट आवर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पे केमिकल इफेक्ट कैसे होता है वो हमें समझना है। सो देखिए इसमें हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो बैटरीज होती है, बैटरीज के अंदर इस तरह की केमिकल कंपोजिशन होते हैं, और केमिकल कंपोजिशन क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस वो पास आउट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, जो पार्टिकल चार्जेस जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ मूव करते हैं। वही चीज हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। सो केमिकली इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट का है, तो उसमें सबसे पहले हमें समझना है कि एक स्पेसिफिक हमें एक सॉल्यूशन ऑफ बीकर लेना है। बीकर के अंदर एक स्पेसिफिक मान लीजिए वाटर ले लीजिए या डिस्टिल वाटर ले लीजिए, और डिस्टिल वाटर के अंदर दो तरीके के रॉड्स, तो डिस्टिल वाटर के अंदर जैसे मान लीजिए दो तरीके के फॉर्मेशंस ऑफ कैथोड रोड ले लीजिए, उसकी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए 12 वाट की बैटरी विद की, और एक बल्ब वहां पे लगाइए। सो देखेंगे कि जो सॉल्यूशंस दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहा जाता है। द सॉल्यूशन दैट जनरली हैविंग टू बी कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के अंदर वी नीड टू कार्बन रॉड्स, दो कार्बन रॉड की जरूरत है। Now dip these two carbon rods into a beaker which filled with the distilled water। एक बीकर के अंदर आपको उसको रखना है, और जो बीकर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर से पूरा का पूरा भरा हुआ है। Now connect that small bulb as well as connect the 12-volt battery and the key with connecting having the rods। वो जो कार्बन के रॉड्स आपने यूज किए उसके साथ बैटरी, बल्ब और की को आप कनेक्ट कर दीजिए विद द स्पेसिफिक टर्मिनल। So you will see that when there is a connection of formation of electrolyte solution, there is seen that the bulb does not glow। bulb जो होगा वह glow नहीं करेगा, because the pure water cannot be conduct the electricity। it is called as a non-conductor, उसको आप insulator कहते हैं। So distilled water cannot conduct the electricity from the specific point, so it is a non-conductor of electricity। Now add small amount of salt into that solution। उस solution के अंदर क्या करो, small amount of salt को add करो। So when you add the small amount of salt in that, you can see that the bulb that will be closed। Why it can be happen this type of the formations? So this type of the experiment which shows that on the highly formation of the pure water
cannot be passed the electricity like a distilled water. But what we have to use in our daily life, that is a normal water, so that normal water can easily conduct the electric current, so it is called as a conductor. So these are the generally forms कि ये जो solution जो electricity को conduct कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, electrolytes कहते हैं, that is called as electrolytes. So an electrolyte, the electric current due to the positive and negative charges, जो दो कार्बन के रॉड्स आपने implementation किए, due to the positive and negative charges of this form of electric charge, it can be generally having to pass the electric current, that is called electrolysis. तो electrolysis के लिए Faraday's के दो लॉ थे, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, that is called as a Faraday's law, उसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is called as a Faraday's law. Okay, so अगर आप Faraday's के लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं तो Faraday's law. So what is the Faraday's? देखो यहाँ पे law of Faraday's of the electrolysis, they have two different laws, दो अलग-अलग laws थे उसके. The first law कि जो substance जो उसके अंदर use करते हैं, the mass of the substance may be matter. The mass of the substance may be matter that can be generally have to be deposited onto the cathode. Cathode पे deposited होता है, and on passing the electric current through the electrolyte solution, it is proportional to the electric charges which is passing through it. यानी कि इसको simple form में अगर हम समझेंगे तो that should be m proportional to q. The mass of electric form जो होगा वो डायरेक्टली किसके proportional होगा, electric charges के proportional होगा. और दूसरा जो उसका इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सॉल्यूशन का जो दूसरा उन्होंने लॉ दिया था कि for a specific given amount of charge which will be passes through particular solutions, the masses of the different type of the elements which is deposited onto the cathode, it generally having to be electrochemical composition. It means m1 upon n2 is equal to e1 upon e2. ये जो दो कंपोनेंट थे जिसे कॉल इलेक्ट्रोकेमिकल कंपोनेंट या इक्विवेलेंट टू द एटम्स इन द रेशियो ऑफ देयर मासेस एंड देयर वैलेंसी, ये उसका दूसरा फैराडे का लॉ है. ठीक है, चलिए उसके बाद एक और टॉपिक हमें डिस्कशन करना है, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर कॉन्सेप्ट हमें समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जो इलेक्ट्रोलाइसिस के सॉल्यूशंस होते हैं वैसा ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है. तो उसके अंदर एक बीकर यूज करना है, बीकर के अंदर दो तरीके के रॉड यूज करना है. एक आपका जो आप दो रॉड्स के ऊपर एक दूसरे पे गैल्वेनाइज या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए स्पून और एक पे आप ले लीजिए कॉपर, एक मेटालिक स्पून है और एक कॉपर है, दोनों को एक स्पेसिफिक बैटरी के साथ की कनेक्टेड कर दीजिए और सॉल्यूशन जो है अगर कॉपर का है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वहां पे आप ले सकते हैं. तो कैसे एक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, a specific process of the depositing of one metal to the another metal by the chemical effect of electric current, that is called electroplating. एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करने के लिए जो हम केमिकल इफेक्ट का यूज करते हैं ऑफ करंट का, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए मान लीजिए एक मैंने कॉपर रखा है, दूसरा मेरा स्पून जो है मेटालिक स्पून है, तो मुझे मेटालिक स्पून पे कॉपर को इंप्लीमेंट करना है. कैसे उसको इंप्लीमेंटेशन करेंगे, चलिए. तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि एक बीकर लेना पड़ेगा और बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए मुझे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, दैट इज कॉल्ड CuSO4. इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर मुझे आयन का स्पून और जो कॉपर का रॉड है उन दोनों को प्लेस करना है, जिसको इलेक्ट्रोड्स कहेंगे. ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हो गए. अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मुझे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, बैटरी के साथ कनेक्ट. अभी जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के अंदर आप उसको डीप करोगे तो दोनों जो रॉड्स होंगे वो चार्ज हो जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज. तो कॉपर जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि दैट शुड बी मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स के हिसाब से, और जो ये होगा स्पून फॉर्मेशंस वो नेगेटिव होगा. तो जनरली नेगेटिव से पॉजिटिव का जो फॉर्मेशन बनता है थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, Cu+2 हो जाएगा और SO4-2 हो जाएगा आयंस के हिसाब से. तो Cu+2 का आयंस जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जबकि SO4-2 का आयंस जो होगा आयंस स्पून्स का वो नेगेटिवली चार्ज होगा. तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में केमिकल इफेक्ट जनरेट होगी और दोनों के जो पॉजिटिव आयंस जो नेगेटिव आयंस की तरफ मूव करेंगे, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कह सकते हैं. तो मेटल्स जनरली फॉर्म्स में इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है वो अलग अलग लेयर्स, गैल्वेनाइजेशन एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर्स या मेटल्स पे दूसरे मेटल्स को इंप्लीमेंट करने से सिल्वर पे गोल्ड का इंप्लीमेंटेशन करने से
मेटल पे दूसरे मेटल को डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस होती है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहा जाता है, जिसकी वजह से आप सरफेस उसके काफी शाइनिंग रख सकते हो, रस्टिंग से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर कि व्हाट इज फैराडेज लॉ, क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। So only on this chapter, the rest of the topics which is generally covered in this topic, I hope in this chapter of electricity you can easily understand what is called electricity as a terms of the concept which is given into your textbook. So once again I just requested to you, what are the topics which is given into your textbook, just revise it, just prepare this question and your own answers representation and a notebook, just revise more and more topics you have to discuss, or maybe you can use the different digital mediums of the learning to implement these questions very helpful to you. So once again, stay home, stay safe students, keep updating your knowledge. Once again, stay home, stay safe, take care and bye.